Welcome friends. Today in this lecture, that is the lecture number 1 of new series, that is the DSP series. Okay, means today I am going to start a new series on digital signal processing subject. Okay, this is important subject in B Tech electrical and as well as ECE. Okay, we will mainly focus on the electrical application. Okay, so this is the lecture number 1, video lecture number 1. In this lecture we will discuss the introductory part. Introductory part means what we will discuss in this series, means digital DSP series. Okay, so let us start. In this introductory video we will discuss okay, what we will discuss, we will discuss about what is DSP, है ना, what is DSP, why we need DSP. Okay, and then what is the block diagram. Okay, block diagram, and then what is the property of DSP, digital signal processing system. Okay, if there is a system, then what should be the ideal properties of that one. Okay, properties. Okay, and then applications, we will discuss applications. Okay, what are the application, we will simply take the overviews of this one. Okay, in the last lecture of this series, that is DSP, we will discuss some important applications. Okay, and then we will go for the advantages and then disadvantages with respect to analog signal processing. Okay, what is the difference between these two. Okay, so this will be the your introductory part. Okay, content of the introduction. Okay, now what will be the contents of DSP series. Okay, this series will contain number 1, first of all this video, that is the introductory part. This will give you overview of the DSP subject. Okay, and basics concept related to DSP. Okay, then second lecture we will discuss. In second lecture, that is the means content we are discussing, second important content will be discrete time signal and also about the system, discrete time signal and system. Basically this one, and the third topic we will discuss about the Z transform. Okay, these two topic we already discussed in the signal and system series. Okay, of you can go for the lecture number 11 to 15. Okay, in this lecture, that is the 11 to 15 lecture of the signal and system, we already discussed these two topics. Okay, DTS and the Z transform. Now after these 3 points, we will go for the DTFT. This already discussed in lecture number, I think, 13 or 14. Okay, DTFT, and we will go for the DTFT. What is the DFT? DTFT means discrete time Fourier transform, and DFT means discrete Fourier transform. We will also see the difference between these two, and then we will move for the FFT. These three are the important and also related. Okay, now we will go for the next point, that is the filters topics. Okay, these filters are the digital filters, means it is the digital filter, not the analog filters. Okay, in digital filter we will mainly discuss two types, that is FIR and IIR mainly. Okay, next we will go for the sixth topic, that is the finite word length effect. Okay, and related concept. Okay, finite word length effect,
and then next topic we will go for the multi rate signal processing, multi rate signal processing. Okay, we will see what actually it is. Okay, and then we will move for the important topic, that is the applications part. Applications, we will see some applications. Okay, and I will discuss mainly the applications in the power system domain. Okay, or you can say electrical domain, and some application related to electronics and communication domain. Okay, so these are the important concept we are going to discuss. Okay, now we will see one by one topics. Okay, now basically in this lecture, that is lecture number 1, we will focus on these topics. Okay, so we will start now. Okay, now lecture number 1 we are going to discuss. Okay, in this lecture we will see what is the signal processing. First point is what is signal processing. Okay, signal processing, what do you mean by signal processing? Okay, the important is signal processing is any operations any operation that changes the characteristics of a signal. These characteristics include, what are the characteristics? Okay, include the amplitude. What are the characteristics? Amplitude, shape of the signal. Okay, comma, phase and frequency content of the signal. So basically what do you mean by the signal processing? It is any operation. ये क्या है? सिग्नल प्रोसेसिंग कोई भी ऑपरेशंस है जो कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करता है, दैट इज नोन एज सिग्नल प्रोसेसिंग. ओके, नाउ okay, any doubt? If you have any doubt, kindly comment in the comment section, or you can also mail to this one. Okay, now and this is the signal processing. Okay, now some points we will note. Okay, the system actually this is the DSP subject is the advanced version of the signal and system. Okay, or you can say the signal and system will act as the basic for the DSP. Okay, so you need to go through the signal and system subject. Okay, and that video lecture we already uploaded. Okay, then you can go for the DSP. Okay, if there is any keywords you don't know, then you need to refer that one in the previous series of the signal and system. Okay, the system that processes the analog signal is known as analog signal processing system. Okay, so the system that processes the analog signal, जो ऐसा सिस्टम जो एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करता है ना, ऐसा सिग्नल जो एनालॉग सिग्नल को
the system that processes the analog signal is known as analog signal processing system. Analog signal processing system. Actually, if we are going to discuss, if we are means here we are discussing signal processing. We can process the signal, means we will operate some operations on the signals. Okay. So, signals may be analog or means digital signals. So, if there is a analog signal, then we means analog signal processing. Okay. In this we will design a system, analog signal processing system with what diode, diode means big circuits like op amp, okay, RLC circuit you can take, okay, and others. Okay. But in the case of digital signal processing, we will use the digital component in the systems. Okay, digital components, okay, like digital gates, okay, etc., ICs. Okay, so this is your signal processing, and this is your analog signal processing. What is the block diagram for the analog signal processing? Okay, so this will be your analog signal processing block diagram. Okay, here this is analog signal processor, analog signal processor, and this output is analog output signal, which is represented by y of t. Okay, and the input to this system will be your analog signal. So, input will be your analog input signal. Okay, this is represented by x of t. Okay. Now, this figure, what is this figure? This figure is the block diagram. This is your block diagram of an analog processing system. Okay. So, this is your block diagram, means analog signal processor we will use. Okay. Here one thing we need to note, that this analog signal processor, what are the analog signal processors? This is examples are like amplifier, okay, amplifier circuit, है ना. Amplifier means it will amplify, it will change the amplitude of a signal, means it is changing the characteristics of a signal, analog signal. So, it is a analog signal processor. Like filters, analog filters, we are talking about the analog filters. Analog filters means using L, C, okay, and then frequency analyzer, these are the analyzers. Okay. Okay, so this is your analog signal processing, this is your analog signal processing या फिर processor, analog signal. Okay, now we will move for the discrete system. Okay, we already discussed what is the discrete, है ना, in signal. You can go for the signal lecture number 11 or 12. We will also upload that signal lecture, that is 11 to 15 in this series also. Okay, so now we are going to move for the digital signal processing system. Okay, so now we are going to discuss digital signal processing. We already discussed analog, now we will move for the digital signal processing system. Okay, DSP system. Okay, now first of all, what is the digital signal processing? Here simply we can say the input will be digital input signal and the output will be digital output signal, and this will be your discrete signal processor. Okay, simple. Okay, now here we will go for the block diagram. Okay, so what is the block diagram? We will see here.
here one block is here. Okay, now next block is also there. Here I'm drawing a block diagram. Okay, this block diagram is important. Okay, we will draw the 6 blocks, 3 4 blocks. Okay, this is 5th block, and then we will also draw another block, that is the 6th block. Okay, that is the final block, and then finally output. Okay, and this is your input. Okay, so here are the blocks. Okay, now we will make it is a arrow, means flow diagram. It is a flow. Okay, this figure, what is the figure? This figure is the block diagram, okay, block diagram of a digital signal processing system, okay, okay. Now what are the blocks we will named? Okay, here the signal is x of t, which is the analog input signal, and output is also y of t, which is also a analog. Okay, now in this block, that is the first block, in the first block is your NT aliasing filter, this will be your analog filter. Okay, next is the sample and means sample and hold circuit, hold block, sample and hold block. We will discuss what this means. Okay, what is the meaning of these blocks? Okay, next is analog to digital converter. Okay, converter, and then DSP processor. This is the DSP, digital signal processing, or we can say digital signal processor. It is a processor means simply a processor IC will be there, है ना, that will process means we will do some operations on the digital signals. Okay, and then after output of the DSP processor will be digital to analog, will be given to the digital to analog converter. Okay, and then finally this will go to reconstruction filter. Okay, reconstruction filter. Okay, what is the reconstruction, है ना, sample, hold, these things, these keywords are already discussed in the signal and systems. Okay, if you have any doubt, kindly comment. Okay, now here important thing is that here analog to digital, so at this point the signal will be your digital. Okay, means we got analog to digital signal here. Okay, now output of this DSP will be also a digital signal. Okay, now output of digital to analog converter, and then reconstruction filter will be analog. Finally we will get the analog signal. Okay, so this is your DSP system block diagram. Okay, which is important. Okay, now we will go by one blocks. Okay, so start. So we will go one by one block. So the input signal. Okay, the first is input signal. Input signal will come from where? Tell me. Input signal is the analog signal. Input signal is your analog signal, and this will be from, input will be from a transducer or a sensor, you can say sensor or transducer, or a communication signal
communication signal, and thus communication signal. This signal may be your EEG, electroencephalogram, and or ECG. ECG means electrocardiogram. This signal may be ECG or EEG. Its amplitude or magnitude will be very less. We know this one. So input signal is analog, and that input signal will be from any sensor or transducer, or it may be a communication signal, or it may be any message signal, or EEG या फिर ECG. Okay. Now this input signal is applied to an anti-aliasing filter. Important. Anti-aliasing filter. What is this anti-aliasing filter? Anti-aliasing filter, this is a low pass filter. We already discussed this one in signal and system. Low pass analog filter. This is analog filter. Used to remove the high frequency noise. If there is any noise in our input signal, that will be removed by using the anti-aliasing filter. And to band limit the signal. So this is your working of an anti-aliasing filter. Why we are using anti-aliasing filter in this block diagram? So this is your anti-aliasing filter, and this is your input signal. Now we will move for the what is the next block? Now in addition to the low pass filter, it may also be advantageous to include a 50 hertz, because our power system या फिर current voltage AC signal has the frequency of the 50 hertz. 50 hertz, but in the US it's 60 hertz. Notch filter means that will reject some particular frequency, that is the 50 hertz. Notch filter that can remove एलाइजिंग फिल्टर तो लगाना ही है ना, और उसके साथ साथ अगर हो सके तो हम लोग नॉच फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं, है ना. रिमूव द पावर फ्रीक्वेंसी component which is a large part of external, which is जो ये पावर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है इससे भी नॉइज बहुत ही ज़्यादा होता है ना. इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ एक्सटर्नल नॉइज. So this is about your notch filter. This is about the notch filter, means in addition to the anti-aliasing filter we can use also a notch filter which will remove your 50 hertz or power frequency noise. And next block or next point is
the amplifier, important is here amplifier. Okay, amplifier, the amplifier may used to bring the signal up to the voltage range, up to the voltage range मीन्स अब यहाँ पर क्या है, क्या एम्पलीफायर का हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं। एम्पलीफायर से क्या हो जाएगा कि एम्पलीफायर का अगर यूज करेंगे तो जो भी हमारा जो सिग्नल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है सिग्नल, सेंसर से या ट्रांसड्यूसर से या बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का सिग्नल आ रहा है, तो उसको हम लोग एम्पलीफाई कर देंगे, थोड़ा वैल्यू एम्पलीट्यूड को जो ना बूस्ट कर देंगे, सो दैट उसको हम लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर सके और जिसको हम लोग फीड कर सके सिस्टम में वो इजीली उसको उस पर ऑपरेट कर सके। ठीक है, सो अप टू द वोल्टेज रेंज एज लो, क्यों ऐसा हो रहा है, एज लो इनपुट फ्रॉम ट्रांसड्यूसर से क्या आ रहा है, बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का इनपुट आ रहा है ना, ट्रांसड्यूसर्स। ओके, voltage range that is required by the input of the analog to digital conversion unit. Okay, so this is about your amplifier. Okay, next important point or next important block is the sample and the hold. Okay, means after anti-aliasing filter या फिर filter, anti-aliasing filter, notch filter and then amplifier, we will move for the sample and hold circuit. Okay, the sample and hold device या block will provide what it will do, provides the input to the ADC, means analog to digital converter, and will be required if the input signal must remain relatively constant during the conversion of the analog signal to digital format. Okay, so here the keyword is sample and hold block. Okay, what it will do, sample and hold, it will provide the input to the ADC को input देता है, ठीक है, और will be required if the input signal must remain relatively constant. ये क्यों required है, ताकि अगर मान लीजिए एनालॉग टू डिजिटल जो कन्वर्जन हो रहा है उसमें कुछ प्रोसेस, उसमें कुछ टाइम लग रहा है ना, ऐसा नहीं कि जो हमारा इनपुट गया वो इंस्टेंटली वो उसको कन्वर्ट कर देगा, उसको टाइम लगेगा, तब तक के लिए वो क्या करेगा, उस सर्किट को उस डेटा को कुछ समय के लिए वो होल्ड करके रखेगा, ताकि जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हो रहा है वो प्रॉपरली हो जाए, है ना, समझ में आया। नेक्स्ट ब्लॉक चलते हैं, है ना, और नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस सिंपल द आउटपुट ऑफ ADC, the output of the analog to digital converter is an n bit, which bit, n bit, n numbers of bit, n bit binary numbers means output of ADC क्या होगा,
ADC मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बाइनरी होगा, है ना, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्मेट में है तो ऑब्वियस है बाइनरी होगा। डिजिटल मीन्स बाइनरी। बाइनरी नॉर्मली हम लोग बाइनरी बोलते हैं, लेकिन ये बहुत सारा वो भी हो सकता है ना, 0 1 पे ही ये वेरी हो सकता है 4 पॉइंट का हो, है ना। और n बिट का मीन्स नंबर ऑफ बिट्स कितना है ना, टोटल नंबर ऑफ बिट्स, बस इट विल बी बाइनरी इन नेचर। ओके, आउटपुट ऑफ द ADC n बिट बाइनरी नंबर्स, है ना। नाउ द डिजिटल फॉर्म सिग्नल कैन बी प्रोसेस्ड। अब जो ये डिजिटल सिग्नल बन गया है, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस्ड करवा सकते हैं यूजिंग डिजिटल कंप्यूटर बोल सकते हैं, या फिर यूजिंग डिजिटल टेक्निक्स। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे क्यों हम लोग ने डिजिटल को प्रीफर किया, व्हाई नॉट एनालॉग। ओके, वी विल डिस्कस दैट वन। ओके, नाउ ये समझ में आया ADC। अब क्या होगा, ADC का आउटपुट हो गया है ना, अब उसको हम लोग वो कर रहे हैं ना। जो ADC का आउटपुट है वो किसको फीड हो रहा है, ADC का आउटपुट इज़ फीडिंग टू DSP प्रोसेसर को ये फीड हो रहा है ना। सो द DSP प्रोसेसर, ये एक चिप होगा, है ना, DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर में भी क्या हो सकता है, मे बी आ लार्ज कंप्यूटर, मे बी आ लार्ज प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर हो सकता है ना। डिजिटल कंप्यूटर पे कर सकते हैं हम लोग, और माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकता है, छोटा सा कंप्यूटर, है ना। माइक्रो प्रोसेसर और IC माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम टू परफॉर्म द मीन्स, अगर आपका डिजिटल सिग्नल है ना, उस पर आप मीन्स उस सिग्नल से आप खेल सकते हो, मीन्स उस पर कुछ भी आप परफॉर्म कर सकते हो, जिस तरह का आप कोडिंग उसमें करोगे, है ना, जिस तरह का एल्गोरिदम उसमें फिट करोगे, उस तरह से उस सिग्नल पे प्रोसेस करके और फिर उसको आउटपुट में एनालॉग में कन्वर्ट करके आप फाइनली उसको फीड कर सकते हो जहाँ पर डिजायर्ड है, उसका रिक्वायरमेंट है, टू परफॉर्म द desired operations on the input signal. Okay, so this is about your digital signal processor, है ना। Now next important point is the output of डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, है ना, प्रोसेसर इज़ अप्लाइड, कहाँ अप्लाइड करेंगे बताइए, इज़ अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ आ DAC मीन्स डिजिटल टू एनालॉग, क्योंकि डिजिटल सिग्नल है, अब उसको हम लोग एनालॉग में कन्वर्ट करके और फिर उसको फिट करना है, जहाँ पर उसको रिक्वायरमेंट है एनालॉग सिग्नल का, तो एनालॉग में उसको हम लोग दे देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ओके, उसको फीड करेंगे और वो कन्वर्ट करके एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा, है ना, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, द आउटपुट ऑफ DAC मीन्स डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इज़, क्या है ये, इज़ कंटिन्यूअस बट नॉट स्मूथ ये नहीं रहता है ना, स्मूथ एज कंटेंस अनवांटेड हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, है ना। जो आउटपुट होगा वो क्यों ऐसा है, क्योंकि डेक का जो आउटपुट होगा कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, टाइम है और ये
वाई ऑफ टी, है ना, लेकिन ये कैप लगा हुआ है। कैप मीन्स ये आउटपुट ऑफ द डैक, इट्स नॉट अ प्योर एनालॉग सिग्नल। ओके, ये किस तरह से है, कुछ इस तरह से होगा, है ना। कुछ इस तरह से। तो सो दिस इज़ योर डैक का क्या है, ये आउटपुट है, डिजिटल टू एनालॉग। अब इसको तो स्मूथ करना है, और इसको स्मूथ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्मूथनिंग या फिर रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर का यूज करेंगे, ठीक है। सो आफ्टर दिस ब्लॉक मीन्स आफ्टर दिस कंसेप्ट वी विल गो फॉर टू eliminate high frequency components the output of DAC means digital to analog converter is applied to a reconstruction filter। कहाँ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर में। ओके, द आउटपुट ऑफ द reconstruction filter is a smooth and continuous सिग्नल। ओके, स्मूथ भी होगा और कंटिन्यूस सिग्नल भी होगा। सो दिस इज अबाउट योर रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर। ओके, सो दिस कंप्लीट your block diagram description. So we started from the signal, input signal, analog signal x of t, okay, and then finally we concluded with the output signal, analog output signal. Okay, so this is your block diagram description, which is important, okay, for the various examination. Okay, in theory portion, if there is a theory portion questions, then that will be from this one. Okay, DSP block diagrams. Okay, it is the important. Okay, now next, okay, so this complete your what is the DSP. Okay, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है क्या, है ना, और उसके बाद क्या है, ये ब्लॉक डायग्राम जो है एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग का समझ में आया, सिग्नल प्रोसेसिंग डिस्कस किए, है ना। DSP का ब्लॉक डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस किया, एक एक ब्लॉक को हम लोगों ने मेंशन किया है ना, क्या है नहीं है। अब हम लोग कुछ चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट द DSP। ओके, so what are the important information, we will go through that one, and also important for the examination. So DSP, digital signal processing versus analog signal processing. What is the difference between DSP and the ASP with, और यहाँ पर क्या देखना है हम लोग को, एडवांटेज ऑफ DSP। यहाँ पर क्या देखना हम लोग, एडवांटेज ऑफ DSP ओवर ASP। DSP का एडवांटेज क्या है, ओके, और ऐसा क्यों एडवांटेज है, देखते हैं। डिजिटल से सबसे पहले इम्पोर्टेंट, हायर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। DSP जो है डिजिटल, क्योंकि ये सिग्नल किसके साथ ये डील करता है, ये डिजिटल सिग्नल का। क्या, जहाँ डिजिटल सिग्नल का बात आया वहाँ पर किसके बारे में आएगा, बिट्स के बारे में। कितना नंबर ऑफ बिट्स है, मान लो n बिट्स है, तो उसका एरर या एक्यूरेसी जो है उतना ज़्यादा, और प्रिसीजन जो है उतना ज़्यादा वो इंक्रीज्ड हो जाता है ना। उसका ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है ना बिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, किसका, डिजिटल DSP का। जितना ज़्यादा बिट उतना ज़्यादा एक्यूरेट, उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा, है ना। DSP वर्क विद द डिजिटल नंबर, सो एक्यूरेसी डिपेंड ऑन वर्ड लेंथ, जो कि हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में पढ़े हैं। वर्ड लेंथ मतलब क्या होता है, जितना बिट को वो प्रोसेस करता है, नॉट कंपोनेंट टॉलरेंस लाइक रजिस्टर कैपेसिटर इन ASP में दिक्कत क्या है, एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग में कंपोनेंट टॉलरेंस होता है। जैसे रजिस्टर है, रजिस्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा है कि अगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा तो उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, डिपेंडेंट रहता है, टॉलरेंस वैल्यू आ जाता है। उसी तरह कैपेसिटर का भी होता है ऑन द वेरियस फिजिकल
factors. Okay, so DSP has the advantage that it has the higher accuracy and the precision, and this is important. This question is also important. What is the advantage of DSP over the ASP? Okay, and why it's next, programmability. DSP algorithm can be changed via सॉफ्टवेयर, मीन्स DSP algorithm को हम लोग सॉफ्टवेयर से यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको हार्डवेयर को हम लोग को चेंज नहीं करना है. सिंपली हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे और उसको फीड कर देंगे, बस हो गया, हमारा चेंज हो जाएगा DSP का वर्किंग. लेकिन ASP में ऐसा नहीं है, हम लोग को सर्किट को रीडिज़ाइन बनाना पड़ेगा, है ना. अगर लो पास फिल्टर है तो उसको अगर हाई पास फिल्टर बनाना है तो हम लोग को कंपोनेंट को रिप्लेस करना होगा, है ना. रिप्लेस या फिर चेंज या पोजीशन को इधर उधर करना होगा, है ना. प्रोग्रामेबिलिटी एडवांटेज. नो ड्रिफ्ट और एजिंग इश्यू, मीन्स एज के साथ, मीन्स टाइम के साथ ये ख़राब नहीं होता. डिजिटल सिग्नल आर इम्यून टू कंपोनेंट ड्रिफ्ट, टेम्परेचर इफेक्ट, एजिंग. लेकिन एनालॉग सिग्नल जो है वो एनालॉग कंपोनेंट जो है वो टेम्परेचर से भी इफेक्ट होता है, ड्रिफ्ट भी रहता है, मीन्स कुछ टाइम होने के बाद कुछ जो है उसका ये सेचुरेशन लेवल भी आ जाता है ना, है ना. और ये क्या डेड जोन भी आ जाता है, एजिंग भी आ जाता है ना, एनालॉग. ठीक है. उसके बाद क्या, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मीन्स डिजिटल सिग्नल आर एग्जैक्टली रिप्लिकेटेड. अब डिजिटल सिस्टम या फिर सिग्नल को बोलो तो हम लोग उसको रिप्लिकेट कर सकते हैं, सेम टू सेम हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एनालॉग में ये कभी पॉसिबल नहीं है ना. कुछ ना कुछ स्लाइटली डिफरेंट रहेगा. नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम पॉसिबल. इसमें हम लोग कुछ भी कोडिंग कर सकते हैं, टफ टू टफ, है ना. टफ जितना भी टफ हो सकता है हम लोग कर सकते हैं. कोई भी कैन बी इम्प्लीमेंटेड एडवांस टेक्निक्स लाइक एडेप्टिव फिल्टरिंग, FFT, AI बेस्ड प्रोसेसिंग, है ना. वो भी हम लोग इस टेक्निक से, मीन्स DSP के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, AI बेस्ड प्रोसेसिंग, है ना. लेकिन ये प्योर ASP में इट इज़ नॉट पॉसिबल, है. नॉइज इम्यूनिटी, मीन्स क्या हो गया, वंस इन डिजिटल फॉर्म सिग्नल आर लेस इफेक्टेड बाय द नॉइस एंड इंटरफेरेंस. अगर यदि सिग्नल ज़्यादा डिजिटल फॉर्म है, डिस्क्रीट फॉर्म है, तो उसमें जो है ना नॉइज का जो है ना इफेक्ट या इन्फ्लुएंस वो बहुत कम होता है, वो ज़्यादा नहीं होता है ना. दैट इज़ द नॉइज इम्यूनिटी हो जाता है. स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन आराम से कर सकते हैं. डिजिटल डाटा को स्टोर किया जा सकता है, रिट्राइव कर सकता है, मीन्स लिया जा सकता है, एंड ट्रांसमिट भी कर सकता है विदाउट क्वालिटी लॉस के बिना ही हम लोग इसको कर सकते. लेकिन ASP में हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, उसको हम लोग को रियल टाइम में प्रोसेस करना होगा. इंटीग्रेट विथ कंप्यूटर एंड माइक्रो, इजीली इंटरफेस विथ माइक्रो कंट्रोलर एंड FPGA. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना. दिस टेक्निक FPGA है क्या, ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप पढ़िएगा इसको, है ना. FPGA है क्या, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रो कंट्रोलर, है ना. ओके, एंड PC एंड इनेबलिंग ऑटोमेशन एंड AI इंटीग्रेशन. लेकिन एनालॉग को हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं. स्केबिलिटी मीन्स क्या हो गया, चेंजिंग सैम्पलिंग रेट और रिजोल्यूशन इज अ मैटर ऑफ चेंजिंग सॉफ्टवेयर पैरामीटर्स, नॉट रिबिल्डिंग सर्किट. हम लोग स्केबिलिटी मीन्स हम लोग कुछ भी वैल्यू, कुछ भी पैरामीटर का वैल्यू सिंपली हम लोग सर्किट के प्रोग्रामिंग की हेल्प से चेंज कर सकते हैं. हम लोग को रियल लाइफ में ऐसा नहीं किया, जैसे एनालॉग में ये कंपोनेंट हटा दी, दूसरा कंपोनेंट लगा दी, इस तरह का नहीं करना है हम लोग को, है ना. सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नल कैन बी इनक्रिप्टेड फॉर द सिक्योर कम्युनिकेशन. सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हम लोग इनक्रिप्ट कर सकते हैं, लेकिन इट कैन नॉट डू दिस इनहेरेंटली. मीन्स एनालॉग सिग्नल को हम लोग इनहेरेंटली नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी कुछ प्रोसेस है, मेथड्स है ना, जो इफ़िशियंट नहीं है. लेकिन इसमें DSP में हम लोग ईजिली और आराम से हम लोग इसको इनक्रिप्शन कर सकते हैं, वो भी टफ टू टफ लेवल, है ना. इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से, DSP इज़ फ्लेक्सिबल, प्रिसाइज, प्रोग्रामेबल, फ्यूचर प्रूफ. ASP क्या, सिंपल, रियल टाइम बट लिमिटेड, प्रोन टू ड्रिफ्ट, है ना. सो दिस इज़ योर एडवांटेज ऑफ अ DSP ओवर ASP. नाउ नेक्स्ट, व्हाई DSP works with the digital number, so accuracy depend on word length, not component tolerance like register. So this means how DSP work with the means ये जो है क्या नाम, एक्यूरेसी DSP का ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बीट लेंथ पे काम करता है, और जितना ज़्यादा बीट होगा उतना ज़्यादा ये एक्यूरेट होता है. ठीक है. तो यहाँ पर कुछ ये एक्सप्लेनेशन है, ये आप देख लीजिएगा, है ना. ठीक है. मीन्स सिंपल
एक्सप्लेनेशन टू योर एडवांटेज नंबर 1। एडवांटेज नंबर 1 जो है उसका एक्सप्लेनेशन है ये, है ना। जितना ज़्यादा होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, मेन डिस व्हाट if there is advantage of DSP then there must be some disadvantage of DSP, ओके। हम लोग देख रहे हैं डिसएडवांटेज क्या है DSP का ओवर ASP। अगर कुछ डिसएडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज होते हुए भी हम लोग DSP को क्यों यूज करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या क्या है, नीड एक्स्ट्रा चीज़ दैट इज़ द ADC और DAC डेक का हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। क्यों एनालॉग सिग्नल रहता है, रियल वर्ड सिग्नल क्या है मेनली एनालॉग रहता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए तो इसमें क्या होगा अगर यदि ADC या DAC लगाते हैं तो हम लोग को एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, पावर यूज एंड प्रोसेसन डिले सब लगाना पड़ता है। सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन एरर, क्योंकि एनालॉग से हम लोग डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर भी आने लगता है, क्वांटाइजेशन एरर जिसको बोलते हैं। डिजिटल इंट्रोड्यूस एरर्स, है ना। अगर सैम्पलिंग अगर बहुत ज़्यादा नहीं है या फिर वर्ड लेंथ बहुत ज़्यादा इनफ नहीं है तो क्वांटाइजेशन नॉइज बोलो या फिर एलाइजिंग बोलो या फिर एरर आने लगता है। प्रोसेसिंग डिले जिसको हम लोग लेटेंसी बोलते हैं ना, प्रोसेसिंग डिले क्या है, क्योंकि DSP डज प्रोसेसिंग इन स्टेप। DSP जो है कैसे ये प्रोसेसिंग करता है, एक स्टेप में करता है, 1 बाय 1 करता है, इसलिए यहाँ पर क्या है थोड़ा सा डिले हो सकता है, डिले आता है ना, जो कि हाई स्पीड कंट्रोल या फिर ऑडियो लाइव प्रोसेसिंग में इसको हम लोग नॉर्मली डिजिटल सिग्नल को यूज़ नहीं करते हैं। ऑडियो लाइव प्रोसेसिंग में इसमें हम लोग एनालॉग को ही प्रीफर करते हैं ताकि देर शुड नॉट बी एनी डिले, ओके। हाई पावर कंजम्पशन मीन्स DFC प्रोसेसर एंड ECD सर्किट यूजली कंज्यूम मोर पावर देन, और ये जो है क्योंकि इसमें DSP में बहुत सारा कंपोनेंट अलग से ऐड होता है इसलिए मोर पावर का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। कॉस्ट फॉर हायर परफॉर्मेंस फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और हाई रिजोल्यूशन प्रोसेसिंग DSP हार्डवेयर भी हम लोग को एक्सपेंसिव लेना पड़ेगा, है ना, जिसके लिए कॉस्ट बढ़ेगा, है ना। लिमिटेड बाय सैम्पलिंग रेट, न्यूक्विस्ट रेट मीन्स DSP कैन ओनली हैंडल फ्रीक्वेंसीज लेस देन एनालॉग कैन हैंडल मच हायर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली। तो लिमिटेड बाय सैम्पलिंग मीन्स ऐसा नहीं कि सभी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पर वो काम करेगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग का क्या है नेक्विस्ट क्राइटेरिया है ना, उसको फॉलो करना पड़ेगा सैम्पलिंग क्राइटेरिया। कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाता है क्योंकि इसमें हम लोग को प्रोग्रामिंग करना है, सॉफ्टवेयर डिबगिंग करना है, पॉसिबली ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक, है ना। लेकिन ASP में क्या है, ये सिंपली हार्डवेयर है ना, कुछ नहीं, कनेक्ट कीजिए। पोटेंशियल फॉर डिजिटल आर्टिफैक्ट मीन्स अगर एल्गोरिदम ठीक से डिजाइन नहीं हुआ तो DSP का आउटपुट क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, अनवांटेड डिस्टॉर्शन हो सकता है ना। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी हो सकता है। हाई स्पीड स्विचिंग इन डिजिटल सर्किट कैन क्रिएट EMI विच कैन इफेक्ट नियर बाय एनालॉग सिस्टम मीन्स ये जो डिजिटल सिस्टम होगा इसके कारण इंटरफेरेंस भी हो सकता है, मीन्स दूसरे सिस्टम को भी डिस्टर्बेंस या फिर नॉइज आ सकता है दूसरे सिस्टम में। फाइनाइट रिजोल्यूशन इवन विथ हायर बिट डेप्थ DSP कैन नॉट रिप्रेजेंट इन्फिनिटली प्रिसाइज वैल्यू। मीन्स फाइनाइट रिजोल्यूशन आप बोलिएगा कि इसमें 100% हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना DSP के साथ। ESP के साथ थियोरेटिकल देखा गया है कि इससे किया जा सकता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ DSP फ्लेक्सिबिलिटी, एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी तो देता है, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा कन्वर्जन, पावर डिले, कॉम्प्लेक्सिटी भी रहता है, समझ में। तो और ASP क्या है, ये फास्टर है, सिंपल है, पावर इफ़िशियंट है ना, जो कि हम लोग रियल टाइम में करता है। तो हम लोग ने क्या देखा, ये इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है ना। तो DSP का डिसएडवांटेज देखा है ना। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, DSP का तो डिसएडवांटेज है मानते हैं, है ना, लेकिन इवन देन वी आर स्टिल यूजिंग DSP
तब पर भी हम लोग क्या करते हैं, डीएसपी को यूज़ करते हैं अभी भी। क्यों? एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ डीएसपी है, और व्हाई वी स्टिल यूज़ इट, क्यों यूज करते हैं। जैसे एडीसी या फिर डैक का यूज होता है डीएसपी में, जिसके कारण से प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि हम लोग एल्गोरिदम को ईजिली चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग डीएसपी को फॉलो करते हैं। एरर आ रहा है यहाँ पर सैम्पलिंग एंड क्वांटिजेशन, लेकिन एजिंग इश्यू या फिर नो ड्रिफ्ट इश्यू भी है ना। प्रोसेसिंग डिले तो है मान लेते हैं, लेकिन एडवांस टेक्निक का यूज करेंगे तो वो भी डिले कम हो जाएगा, डिले होगा भी नहीं, है ना। हाई पावर कंजम्पशन है ना, लेकिन मानते हैं हाई पावर कंजम्पशन है इसमें दिक्कत डीएसपी में, लेकिन ये स्टोर भी करता है, ट्रांसमिट भी इजीली कर सकता है, डाटा इनक्रिप्ट भी कर सकता है। हाई परफॉर्मेंस है, कॉस्ट ऑफ हाई परफॉर्मेंस के लिए हम लोग को कॉस्ट पेमेंट करना पड़ता है डीएसपी में, लेकिन डिजिटल इकोसिस्टम को ये सपोर्ट करता है ना। सैम्पलिंग रेट से लिमिटेड है, लेकिन कंपोनेंट ड्रिफ्ट और नॉइज़, नो कंपोनेंट ड्रिफ्ट और नॉइज़ इसमें होता है डीएसपी। इसलिए मीन्स ज़्यादातर हम लोग डीएसपी में देखें तो ज़्यादातर एडवांटेज है कंपेयर टू डिसएडवांटेज, और जो डिसएडवांटेज है वो माइनर डिसएडवांटेज है, उसको इजीली हम लोग टेक केयर कर सकते हैं, है ना। सो वी विल गो फॉर द डीएसपी। ओके, सो okay, any doubt? If you have any doubt, kindly comment in the comment section, or you can mail to the one stop for mail at the email id. okay, now next क्या है देखते हैं, ये देखिए। सो इम्पोर्टेंट क्या है, मॉडर्न सिस्टम नीड एक्यूरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग, जो कि एनालॉग नहीं कर सकता है, इसलिए हम लोग को डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पे फोकस करना पड़ेगा, है ना। और जो कि डिसएडवांटेज है वो इजीली हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं विथ गुड डिज़ाइन के साथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एडवांटेज डिसएडवांटेज पार्ट। ओके, नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस। ओके, वी विल मूव फॉर द एप्लीकेशन। डीएसपी हैज़ अ ह्यूज रेंज ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारा एप्लीकेशंस है ना, तो उसमें हम लोग जनरल देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशन है। जनरल एप्लीकेशंस जैसे ऑडियो प्रोसेसिंग, ऑडियो को प्रोसेस करने में उसका क्या एडवांटेज है, ये क्या क्या करता है ऑडियो प्रोसेसिंग में। नॉइज को कैंसिल कर सकता है, मान लीजिए हेडफोन का यूज कर रहे हैं, है ना, तो उसमें भी हम लोग डीएसपी की हेल्प से नॉइज को कैंसिल कर सकते हैं। ऑडियो को कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। स्पीच रिकॉग्नाइज या सिंथेसिस कर सकते हैं, है ना, ऑडियो प्रोसेसिंग। उसी तरह से इमेज एंड वीडियो प्रोसेस भी कर सकते हैं। कंप्रेशन हो गया, जैसे फेस ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं यूजिंग डीएसपी सिस्टम या फिर प्रोसेसर से, है ना। मेडिकल इमेजिन कर सकते हैं, सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, है ना। नेक्स्ट कम्युनिकेशन सिस्टम में भी यूज करते हैं डीएसपी का, जैसे मॉड्यूलेशन के लिए हो गया, एरर डिटेक्शन के लिए हो गया, एडेप्टिव इक्वालाइजेशन इन वायरलेस एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं, है ना। बायोमेडिकल एप्लीकेशन में ईसीजी, ईई सिग्नल फिल्टरिंग एंड डायग्नोसिस के लिए भी यूज करते हैं हम लोग, है ना। प्रोस्थेटिक्स के लिए न्यूरल सिग्नल डिकोडिंग, जो हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं उसका जो सिग्नल होते हैं उस सिग्नल को भी हम लोग डिकोड कर सकते हैं, है ना, करते भी है ना। हियरिंग एड्स में भी यूज करते हैं डिजिटल डीएसपी को, है ना। इंडस्ट्रियल कंट्रोल एंड रोबोटिक्स में भी यूज करते हैं। वाइब्रेशन एनालिसिस इन मैकेनिक्स, फॉल्ट डिटेक्शन इन मोटर एंड रोटेटिंग इक्विपमेंट, सेंसर फ्यूजन इन रोबोट्स एंड द ऑटोनोमस व्हीकल्स, है ना, ऑटोनोमस व्हीकल्स, ये सब में हम लोग इंडस्ट्रियल कंट्रोल एंड रोबोटिक्स में भी यूज कर सकते हैं डीएसपी का, है ना, ईजिली। ओके, नेक्स्ट, सो ये नॉर्मल 5 एप्लीकेशंस है, जनरल एप्लीकेशन है डीएसपी का, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, डीएसपी का एप्लीकेशन कहाँ, पावर सिस्टम में। पावर मीन्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। क्या क्या, पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग में होता है, डिटेक्शन ऑफ हार्मोनिक्स, वोल्टेज सैग, स्वेल, फ्लिकर, स्पेक्ट्रल एनालिसिस मीन्स पावर सिग्नल है तो उसमें कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है ना। उसके फॉल्ट डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन में रिले एल्गोरिथम यूजिंग डीएसपी फॉर फास्टर फॉल्ट डिटेक्शन के लिए हम लोग डीएसपी यूज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम लोग को पता है जैसे वेवलेट ट्रांसफॉर्म्स, जो कि एक डीएसपी में टॉपिक है, वी विल डिस्कस दैट वन लेटर। फॉर लोकेटिंग फॉल्ट ऑन ट्रांसमिशन लाइन में यूज कर सकते हैं, है ना। स्टेट एस्टिमेशन एंड स्टेबिलिटी में भी यूज कर सकते हैं, जैसे प्रोसेसिंग ऑफ
PMU मीन्स फेजर मेजरमेंट यूनिट, जो कि इम्पॉर्टेंट है ना। एक्सट्रैक्टिंग फ्रीक्वेंसी फेज एंगल ऑसिलेशंस को हम लोग के लिए यूज कर सकते हैं DSP को। स्मार्ट ग्रिड साइबर सिक्योरिटी में भी यूज कर सकते, जैसे इंट्रूजन डिटेक्शन और एनालाइजिंग एबनॉर्मल पैटर्न यदि SCADA या PMU डाटा में, तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं DSP से इजीली एंड फास्ट। ओके, डिटेक्टिंग डाटा स्पूफिंग, फॉल्स डाटा इंजेक्शन यूजिंग DSP फीचर एक्सट्रैक्शन। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन में भी यूज कर सकते हैं, MPPT हो गया, ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इन्वर्टर। तो ये सब इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है DSP इन द पावर सिस्टम, है ना। DSP एप्लीकेशन इन साइबर सिक्योरिटी में, जैसे इंट्रूजन डिटेक्शन में होगा, है ना, क्रिप्टोग्राफी में भी यूज कर सकता है ना, बायोमेट्रिक्स सिक्योरिटी हो गया, साइड चैनल अटैक प्रिवेंशन एटसेट्रा में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो DSP का क्या होगा, एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल फीचर्स, रिमूविंग नॉइज, रियल टाइम एनालिसिस ऑफ सिग्नल, है ना, पावर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, DSP ब्रिज बिटवीन द रॉ डाटा। तो ये सब इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है जो कि आपको आना चाहिए, कहाँ कहाँ हम लोग DSP को यूज कर सकते हैं। आजकल तो पता है बहुत सब कुछ तो डिजिटल में ही चल रहा है, तो आपको डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इंडस्ट्री में तो हो ही रहा है ना DSP। नाउ एप्लीकेशंस क्या है DSP का, तो हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं, ये एक टेबल फॉर्म है, तो आप देख लीजिएगा इसको। जनरल DSP में क्या क्या है, ऑडियो प्रोसेसिंग, इमेज कम्युनिकेशन, बायोमेडिकल, इंडस्ट्रियल, रोबोटिक्स, फॉल्ट, PMU एट्सेट्रा, है ना। सो दीज आर द एप्लीकेशन। तो ये हमारा एप्लीकेशन हुआ DSP एप्लीकेशन इन द पावर सिस्टम, है ना। एक्टिव पावर फिल्टर हो गया, सेटकॉम कंट्रोल, इंट्रूजन डिटेक्शन, स्मार्ट मीटर, लोड फोरकास्टिंग एंड द स्मार्ट मीटर, PMU डाटा, है ना, हार्मोनिक एनालिसिस, फ्लिकर, डिजिटल रिले, आर्क एट्सेट्रा, बहुत सारे एडवांटेज या फिर एप्लीकेशंस है DSP के, है ना। सो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट है कि जो DSP का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो पावर सिस्टम में कौन कौन सा यूज होता है ना। जैसे हमारा नॉइज फिल्टरिंग करना है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, डिजिटल फिल्टर का यूज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी एस्टिमेशन का यूज करना है तो FFT, DFT या फिर पोनी मेथड यूज कर सकते हैं। हार्मोनिक एनालिसिस करना है तो FFT या फिर वेवलेट ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं। फॉल्ट डिटेक्शन करना है तो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं या फिर WT कर सकते हैं। सिग्नल कंप्रेस करना है DCT या DWT कर सकते हैं। कंट्रोल करना है तो PID कर सकते हैं, लेकिन ये डिजिटल फॉर्म में PID कंट्रोलर्स, है ना, मॉडल प्रिडिक्टिव कंट्रोल एट्सेट्रा, है ना। अब इम्पोर्टेंट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DSP। जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है या प्रोसेसर है या सिस्टम है DSP सिस्टम, उसका क्या आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए, तो पहली बात तो डिस्क्रीट टाइम ऑपरेशंस होना चाहिए, है ना। DSP वर्क ऑन द सिग्नल रिप्रेजेंटेड एज सीक्वेंस ऑफ नंबर सैम्पल्ड इन टाइम। एग्जाम्पल, ऑडियो सिग्नल सैम्पल्ड एट इतना हर्ज इन म्यूजिक प्लेयर्स, है ना। तो डिस्क्रीट टाइम ऑपरेशंस होना चाहिए, लीनियरिटी प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट DSP सिस्टम आर डिजाइन एज LTI सिस्टम, है ना, FI डिजिटल फिल्टर। टाइम इन्वेरियंस होना चाहिए, सिस्टम बिहेवियर डज नॉट चेंज विद द टाइम, इफ़ द इनपुट डिले आउटपुट इज ऑल्सो डिलेड इक्वली, है ना, जैसे इको फिल्टर्स इन द ऑडियो प्रोसेसिंग। स्टेबिलिटी स्टेबल होना चाहिए, है ना। DSP सिस्टम क्या होना चाहिए, विवो स्टेबल होना चाहिए। कॉजुअलिटी, रियल टाइम DSP रिक्वायर आउटपुट टू डिपेंड ओनली ऑन पास्ट, है ना, कॉजल सिस्टम होना चाहिए, है ना। मेमोरी होना चाहिए, DSP में बी मेमोरी लेस और हैव द मेमोरी, दोनों पे काम करेगा, है ना। FIR फिल्टर विथ मेमोरी, है ना। फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन कर सके, है ना। DSP में क्या होगा, फूरियर हो गया, जेड हो गया, लैप्लस, है ना, ये सब हम लोग को फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस कर सके इजीली, है ना। डिजिटल फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्वांटाइजेशन इफेक्ट है, डिजिटली हम लोग क्वांटाइजेशन या फिर रियल टाइम प्रोसेसिंग होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रियल टाइम प्रोसेस कर सके, है ना। प्रोग्रामेबिलिटी होना चाहिए एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हायर एक्यूरेसी एंड रिपीबिलिटी होना चाहिए, ये सब फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है ना।
समझ में आया, जो कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टी है डीएसपी का, है ना। नाउ नेक्स्ट, दिस टेबल इज इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, है ना। ये क्या है, कंपेरिजन टेबल, वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्म्स है उसको कंपेयर करने का टेबल है। जैसे DTFS और DFS, DTFT डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज या फिर डिस्क्रीट फूरियर सीरीज, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये क्या है, डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, FFT फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड जेट ट्रांसफॉर्म्स, ये सभी डिजिटल में डील करता है ना। इनपुट सिग्नल क्या है, डिजिटल, ये सब सभी किसके लिए है, डिजिटल सिग्नल एनालिसिस के लिए है। क्या क्या है, तो अब देखिए DFS या DTM में इसमें पीरियोडिक सिग्नल होना चाहिए इनपुट, इसमें एपीरियोडिक सिग्नल, इसमें फाइनाइट लेंथ DFT, इसमें भी फाइनाइट लेंथ, और इसमें डिस्क्रीट कुछ भी हो, इन्फिनाइट हो फाइनाइट हो कोई मतलब नहीं है, जेट ट्रांसफॉर्म में इनपुट। लेकिन आउटपुट क्या होगा, यहाँ पीरियोडिक है तो यहाँ पर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आएगा आउटपुट में, है ना। इसका आउटपुट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आएगा क्योंकि ये पीरियोडिक है। ये फाइनाइट लेंथ है, इसमें भी डिस्क्रीट आ रहा है, इसमें भी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और इसमें भी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आएगा, है ना, जो कि हमारा रिक्वायर्ड है कि स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट में आए, है ना। पर्पस क्या है, कब यूज करते हैं, DTFS का पीरियोडिक सिग्नल एनालिसिस के लिए करते हैं, ये थियोरेटिकली के लिए कर सकते हैं DTFT, लेकिन DFT डिजिटल स्पेक्ट्रल कंप्यूटेशन के लिए करते हैं, है ना। फास्ट कंप्यूटेशन ऑफ DFT इज नोन एज FFT, फास्ट कंप्यूटेशन करना है तो जिसको हम लोग FFT यूज करते हैं। ये सब एल्गोरिदम कंप्यूटर में यूज होता है FFT। जेट ट्रांसफॉर्म को बेसिकली हम लोग सिस्टम को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं, मीन्स सिस्टम स्टेबल है या नहीं है ना, एट्सेट्रा। और जेट ट्रांसफॉर्म जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है और कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम लोग इसको डील करते हैं, ठीक है। तो मेनली जेट ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, एक जनरल फॉर्म हो गया। DTFT क्या हो गया, जेट ट्रांसफॉर्म को हम लोग अगर इवाल्यूट के यूनिट सर्कल पे तो वो DTFT होगा। DFT क्या होगा, इसको अगर हम लोग सैंपल कर देंगे DTFT को तो DFT मिल जाएगा। FFT क्या हो गया, फास्ट वे ऑफ DFT हो गया, फास्ट वे, है ना। और DTFS क्या है, ये हो गया आपको स्पेशल केस ऑफ DFT फॉर एपीरियोडिक सिग्नल, एपीरियोडिक सिग्नल के लिए हम लोग DTFS या DFS करते हैं, समझ में आया। तो ये इम्पोर्टेंट था, है ना, टेबल है जो कि हम लोग जो एनालिसिस करेंगे डिस्क्रीट सिग्नल या डिजिटल सिग्नल पे जो भी हम लोग ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे हैं, बेसिक ट्रांसफॉर्म, उसको हम लोग जस्ट सिंपली कंपेयर किया है ना, जो कि आपको सिग्नल के लेक्चर नंबर 14-15 में मिल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ट्रांसफॉर्म इन फ्रीक्वेंसी मेनली यूज, है ना। ये टेबल हो गया है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, देखना है देख लीजिएगा आप, ठीक है। नाउ कंपेरिजन, लेप्लास और जेट ट्रांसफॉर्म में एंड फूरियर में क्या डिफरेंस है ना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेप्लास ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या क्या है, DFT, FFT एट्सेट्रा, है ना। अब देखिए सिग्नल टाइप, लेप्लास में कंटिन्यूस होना चाहिए, इसमें डिस्क्रीट होना चाहिए। फूरियर ट्रांसफॉर्म दोनों में कर सकते हैं, कंटिन्यूस के लिए भी है और डिस्क्रीट के लिए भी। डिस्क्रीट के लिए जैसे DFT, FFT, है ना। इक्वेशन छोड़ दीजिए, इक्वेशन हमने पहले ही बता चुका है ना, अलग अलग इक्वेशंस है ना, कैसे क्या करता है, ठीक है। डोमेन, S डोमेन में लेप्लास को, जेड डोमेन में जेट ट्रांसफॉर्म, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग किसको करते हैं, ये फूरियर को, है ना। फोकस क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉल्व डिफरेंस इक्वेशन जेड, और एनालाइज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को अगर एनालाइज करना है तो हम लोग को फूरियर ट्रांसफॉर्म का हेल्प लेना पड़ेगा, है ना। स्टेबिलिटी चेक के लिए पोल इन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, किसका, एस लेप्लास के लिए, लेप्लास में अगर जेट ट्रांसफॉर्म है तो यूनिट सर्कल के अंदर में होना चाहिए स्टेबल के लिए। और स्टेबिलिटी ये बताता ही नहीं है, कौन नहीं बताता है, फूरियर। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कंट्रोल या एनालॉग सर्किट के लिए लेप्लास, डिस्क्रीट के लिए जेट ट्रांसफॉर्म, और यदि स्पेक्ट्रल या स्पेक्ट्रम एनालिसिस करना होगा, सिग्नल हार्मोनिक्स नॉइज, तो हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशंस देख सकते हैं, डिजिटल एनालॉग फ़िल्टर, डिजिटल फ़िल्टर में, है ना। और ये FFT स्पेक्ट्रल कंप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। पावर सिस्टम में कहाँ यूज, स्टेबिलिटी एनालिसिस, डिस्क्रीट कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर, PMU, स्मार्ट ग्रिड, हार्मोनिक डिटेक्शन एट्सेट्रा पे हम लोग यूज करते हैं। सो दिस आर द
बेसिक कंपेरिजन टेबल ऑफ द लैपलास जेड एंड द फोरियर, है ना, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ द पावर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी एंड डीएसपी, ये जरूरी नहीं है, हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। सो दिस कंप्लीट योर लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया देखते हैं, है ना। डिजिटल सिग्नल, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था फर्स्ट, है ना, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना। इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, क्या इंट्रोडक्शन है, तो इसमें क्या है सिग्नल प्रोसेसिंग क्या है ना, एएसपी क्या है, डीएसपी क्या है, ब्लॉक डायग्राम क्या है, ब्लॉक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है ना, एप्लीकेशन है, डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है ना, वाई डीएसपी वाई नॉट एएसपी, है ना। एप्लीकेशंस हो गया, पावर सिस्टम में क्या एप्लीकेशंस है, नॉर्मल एप्लीकेशंस क्या है ना। और उसके बाद हम लोग कंपैरिजन टेबल डिस्कस किए थे बहुत सारा, है ना, जैसे वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्म जो है, जैसे लैपलास जेड एंड द फोरियर, उसके बीच में कंपैरिजन, है ना। और उसके बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीएसपी सिस्टम, है ना, जो कि इम्पॉर्टेंट है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।